Hello students, how are you? In our previous class we almost complete the chapter. Only the last topic, that is diagrams of the animal and plant cells, is remaining. These are typical diagrams of animal and plant cells. Let me find out that we discussed about the cell organelles where they are located in plant and animal cells. Okay, and we also compare between the plant and animal cells. Okay, now firstly start about the cell membrane. This is cell membrane of animal cell. Similarly, if we consider the cell membrane of the plant cell, then this is cell membrane of plant cells. Both plant and animal cells these are common, so I am writing with the black pen. Anything which is changed we will use the different pen, so you can easily identify that where you can easily identify that where are the differences, what are the differences between the plant and animal cells. Okay, clear? First thing, that is cell membrane, both that have. Second thing that we say that the liquid which is filled between the nucleus and cell membrane, that is called cytoplasm, and here that is cytoplasm. And you know that cytoplasm is the basic component of each cell, so it will be present in the both cells. Okay, now this is nucleus, this one, that is nucleus. Okay, this is nucleus. In the plant cells, this is nucleus. So one difference in your mind that should become in your mind, that in animal cell nucleus is present at the center, while in animal cells it is peripheral, that means towards the cell membrane. Okay, the difference is clear. Now next one, endoplasmic reticulum. And endoplasmic reticulum, there are two types. This is rough endoplasmic reticulum, RER. Here that is RER, rough endoplasmic reticulum. Okay, the rough endoplasmic reticulum is just attached with the nucleus. So in both of that one, it is smooth endoplasmic reticulum, which is peripheral or toward the cell membrane. Here this is smooth endoplasmic reticulum, both that have. Okay, in the endoplasmic reticulum, the rough endoplasmic reticulum, there are the presence of these red dotted, these are ribosomes. These are ribosomes, and here these are ribosomes. Okay, clear? Now after that, the next cell organelle, that is mitochondria, or single one is called chondrion. Here this is mitochondrion, plural that is mitochondria, singular is mitochondrion. Okay, so it is also common in both cells. Now the next common cell organelle, that is lysosome. And in animals, in plant cells, if we consider, then this is lysosome, but in plant cell it is less developed, or sometimes it is absent also. In typical cell that is present. Okay, this is Golgi apparatus, and here this one is
Golgi apparatus. One thing, let me clear you, this is not difference that here it is and that is here. No, that is not difference. It is just a presentation. Okay, clear? So these are the common cell organelles, the cell structures which are common in plant and animal cells. Now let us start to find out the difference. In the animal cells there is one more structure, that is centriole, or single one, that is centriole, and there are two, that one which is downside of the rough endoplasmic reticulum. Combinedly they are called centrosome. Single, that is centriole, which is present in animal cells only, not in प्लांट सेल्स में ये नहीं पाई जाती है, केवल और केवल किस में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में. Got it? Now in plant cells, if we consider the different structures, then this one firstly, that is chloroplast. पर्टिकुलर नेम बोले तो क्लोरोप्लास्ट, अदरवाइज अपन क्या बोलते हैं, दैट इज प्लास्टिड, that are present in plant cells only, not in animal cells. Got it? Understand? Second difference structure, that is also chloroplast, that is inside the granum and stroma are showing, and there is just a indication. This is vacuole. It is absent in plant cells, present in plant cells, absent in animal cells. Got it? Understand or not? So that is the major difference. Acha, one more, that is cell wall. That is cell wall. It is primary cell wall and that is secondary cell wall. इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडजेसेंट सेल वॉल. दूसरी वाली सेल के साथ अटैच सेल वॉल ये प्रेजेंट होती है. गॉट इट? सो दैट आर मेजर डिफरेंस. तो अगर अपन डिफरेंस की बात करें तो 1 2 3 4 तो यही हो गए. ओके, 4 तो मेजर डिफरेंसेस है. फिफ्थ में डिफरेंस की बात करें तो इट इज न्यूक्लियस इन द सेंटर, इन न्यूक्लियस इट इज पेरिफेरल. ओके, फिफ्थ डिफरेंस. सिक्स डिफरेंस, न्यूक्लियस यहाँ पर जो प्लांट्स एनिमल सेल होती है ये इतनी रेगुलर नहीं होती, लेकिन बट इन द प्लांट सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल इट इज रेगुलर. कैसी होती है ये? रेगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है. गॉट इट? सिक्स डिफरेंस सेंटर, और उसकी बात अपन ने कर ही ली. ओके, वन मोर डिफरेंस अबाउट द एनिमल एंड प्लांट सेल, दैट इज गोल्जी apparatus. In the plant cells, Golgi apparatus is less developed. It is less developed, while in the plant animal cell it is more developed. Got it? So these are the differences between the plant and animal cell, and these are the diagrams of plant and animal cells. Okay, clear? Now let me discuss the question answer of this chapter, because our chapter is completed. First question, that is make a comparison and write down ways in which the plant cells are different from animal cells. We already discussed. Second question, how is a prokaryotic cell different from the eukaryotic cell? We already discussed about that, how the prokaryotic cell nucleus is undefined. In the animal cell, in eukaryotic cell nucleus is defined. In prokaryotic cell there is a single chromosome, while in a eukaryotic cell there are more than one chromosome. In prokaryotic cell there is absence of membrane bound cell organelle. In eukaryotic cell there are present. Size, plant prokaryotic cell 1 to 10 nanometer millimicron, that is 5 to 100 millimicron. Okay, we already discussed. Third question, what would happen if the plasma membrane ruptured or break down? क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रैप्चर्ड हो जाए, फट जाए, या ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए? तो उसको आप इन्हीं डायग्राम से आप समझ सकते हैं.
अगर प्लाज्मा सेल रैप्चर होती है या सेल मेम्ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं रैप्चर हो जाए, तो जो प्रोटोप्लाज्म है इट विल एक्सपोज्ड, वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज होगा। सेल का जो कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा। उस कंडीशन में सेल जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती। ओके, सेल मेम्ब्रेन मटेरियल्स का एक्सचेंज कंट्रोल करती है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं हो तो मटेरियल्स का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो सेल सरवाइव नहीं करेगी। गॉट इट? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्टिव लेयर है, अगर वो नहीं रही तो सेल का प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो तीनों जो पॉइंट हैं उनका आंसर अपन क्या लिख सकते हैं, द सेल विल नॉट सर्वाइव। लेकिन आपको इसका आंसर डिफाइन करते हुए लिखना है, जो अभी अपन ने पॉइंट डिस्कस की उसकी बेसिस पे आपको आंसर देना है। फिफ्थ, विच ऑर्गेनेल इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? एंड यू नो दैट आंसर, विच वन? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एंड द क्वेश्चन अगेन दैट इज व्हाई? व्हाई? तो अपन डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। बिकॉज द फॉर्म द एनर्जी प्रोडक्शन, the energy of the food during the respiration convert into ATP, which are energy currency of cell, and the formation of ATP takes place in mitochondria. That's why mitochondria is called powerhouse of the cell. Got it? Sixth question, where do the lipid and protein constituting the cell membrane get synthesized? सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले जो लिपिड और प्रोटीन्स हैं वो कहां पर बनते हैं? You know that lipid and protein synthesis is the work of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is related with the protein synthesis, while smooth endoplasmic reticulum is related with the lipid synthesis. So I think you can give the answer. Next, seventh, how does amoeba obtain its food? Amoeba obtain its food by the process of endocytosis. Endocytosis, let me discuss about it. क्लियरली यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। Got it? So let me discuss about the process of intaking of the food in amoeba, that is endocytosis. Amoeba is a unicellular or multicellular? It is unicellular organism. Amoeba is a unicellular organism which cell membrane is very flexible. Amoeba जो है वो एक unicellular organism है जिसकी cell membrane, that is nucleus, that is cytoplasm, and its सेल मेम्ब्रेन। तो जब अमीबा जो है वो फूड के कांटेक्ट में आता है, अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती तो आप कोई भी शेप बना सकते हैं। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द फूड पार्टिकल, जब ये फूड पार्टिकल, दैट इज फूड पार्टिकल, ओके, इट इज फूड पार्टिकल। तो जब अमीबा जो है वो फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने के कारण से इसका साइटोप्लाज्म जो है वो फूड पार्टिकल के चारों तरफ, जो फूड पार्टिकल है दिस वन, इस फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक्सटेंड होता है और एक्सटेंड होकर स्ट्रक्चर बनाता है जिन्हें बोला जाता है दैट आर कॉल्ड सूडोपोडिया। क्या बोला जाता है इन्हें? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। क्या बनाता है? दैट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें बोला जाता है सूडोपोडिया। ये सूडोपोडिया बनाकर इस फूड को कैप्चर करता है। क्या कर लेता है ये? फूड को कैप्चर, जिसके रिजल्ट में फूड जो है वो इनगल्फ हो जाता है। फूड जो है वो क्या हो जाएगा? इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब अंदर आ जाता है। ओके, नाउ ये जो फूड पार्टिकल है
इसको कंटेन करने वाली ये जो वैक्यूल बनती है इसे बोला जाता है फूड वैक्यूल। इट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। क्या बोला जाएगा इसे? फूड वैक्यूल। फूड को इंटेक करने के बाद जो अमीबा है इसमें फूड का डाइजेशन का प्रोसेस होता है। जो फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल में से जो फूड का डाइजेशन, और फूड का डाइजेशन होने के बाद जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं दे एब्जॉर्ब्ड, वो क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब कर लिए। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये यहां तक ये जो प्रोसेस है इनटेक करना, ये कहलाता है दैट इज एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इन, साइटो मीन्स सेल्स, तो एंडोसाइटोसिस के थ्रू इसे इनटेक कर लिया जाता है। सॉरी। एंड आफ्टर दैट जब फूड का डाइजेशन हो गया, यूजफुल मटेरियल्स एब्जॉर्ब हो गए, उसके बाद में ये जो फूड वैक्यूल है ये सरफेस के ऊपर आती है वापस से, और जो भी वेस्ट मटेरियल है जो उसके काम का नहीं है दैट इज वेस्ट, उसे बॉडी से थ्रू आउट कर दिया जाता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ द फूड। ये क्या प्रोसेस है? फूड की इनटेक की प्रोसेस किसमें? इन अमीबा। intake of food, intake of food in amoeba, और प्रोसेस का नाम क्या है? दैट इज एंडोसाइटोसिस। कैन यू राइट इट? सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है व्हेन द अमीबा कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द फूड पार्टिकल देन इट्स साइटोप्लाज्म एक्सटेंड and make finger-like structures which are called pseudopodia. These pseudopodia cover the food particle and engulf or intake it and make a vacuole which is called food vacuole. In this food vacuole the food is digest. In this food vacuole the food is digest and the useful materials are absorbed. After that the waste is removed from the cell membrane of amoeba. Okay, clear? लिख सकते हो ना आप इस चीज को? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोसिस? यू कैन इजीली डिफाइन द स्पेशल डिफ्यूजन through the semi permeable membrane is known as osmosis, or you can also write that the movement of solvent particles from through semi permeable membrane, that is known as osmosis. We already discussed. क्वेश्चन नंबर 9 अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। 10th की अपन बात कर लेते हैं। Which type of cell division is required for the growth and repair of the body, and which type is involved in the formation of gamete? कल क्लास में डिस्कस किया था अपन ने। ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए कौन सा डिवीजन होगा? वी कंसिडर द ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ और रिपेयर के टाइम पर कौन सा डिवीजन है? दैट इज माइटोसिस। एंड एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, there is which one? Meiosis. Got it? Understand? So these are the types of division in these processes. Now let's discuss the question number 9. Clearly saying for this question, that one, and question number 9 I am discussing the question answer. Otherwise we already discussed all of these questions in our chapter, but these two questions are something new for you. The question is carried out the following osmosis experiment. Take 4 peeled potato halves and squeeze each one out of the make potato cups. इनका कहना है कि 4 पोटैटो, हाफ जो पोटैटो है वो लिए अपन ने, और उनके बीच का, जैसे ये हाफ पोटैटो अपन बात कर लें, ओके, उनके बीच का अपन ने निकाल लिया और उसको जो है एक तरीके से हाफ कप टाइप अपन ने बना लिया।
that is second, that is third, and that is fourth. तो 4 हाफ्स अपन ने डी बना लिए, दैट इज सपोज दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी एंड दैट इज डी. उसके बाद आगे बोल रहे हैं वन ऑफ दीज पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम ए बॉइल्ड पोटैटो. ये मान लेते हैं अपन वो तीनों जो हैं वो तो एक तरीके से जो कच्चे वाले हैं, जबकि दैट इज बॉइल्ड. ये कैसा है? बॉइल्ड पोटैटो है. ओके, नाउ पुट ईच पोटैटो कप इन ए ट्रफ कंटेनिंग वाटर. अब हर एक पोटैटो कप को अपन ट्रफ, किसी भी वाटर कंटेनिंग ट्रफ में अपन इनको रखते हैं. ओके, नाउ कीप कप ए इम्पिटी. ए को इम्पिटी रखना है. बी पुट 1 टीस्पून शुगर इन द कप बी. इसमें अपन डालते हैं 1 टीस्पून ऑफ शुगर. ओके, इन सी साल्ट. सी के अंदर अपन 1 टीस्पून साल्ट अपन यहां पे पुट करते हैं. फोर्थ, पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो. और इसके अंदर भी अपन 1 टीस्पून ऑफ द शुगर बॉइल्ड पोटैटो के अंदर अपन इसको पुट करते हैं. कीप दीज फॉर 2 आवर्स. इनको 2 आवर्स तक अपन रखते हैं. देन ऑब्जर्व द 4 कप एंड आंसर द फॉलोइंग. उसके बाद अपन इन 4 कप्स को अपन देखते हैं और फिर बाद में अपन उसके क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं. तो यहां पर अपन देखें तो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट वी विल फाइंड दैट इज एम्प्टी एंड दैट इज ऑल्सो एम्प्टी. ये दोनों ही एम्प्टी होंगे. लेकिन बी और सी जो हैं, बी और सी जो हैं, इनके अंदर, इन दोनों के अंदर वाटर विल कलेक्ट, वाटर विल कलेक्टेड, वाटर कलेक्टेड इन द हाफ्स. जो हाफ्स हैं, हाफ जो हैं ये कप्स हैं, इनके अंदर वाटर कलेक्ट होगा. गॉट इट? ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा क्योंकि एक्टिविटी टाइप का ये क्वेश्चन है. नाउ वी हैव टू आंसर दैट फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी. बी और सी के अंदर वाटर जो है वो कलेक्ट क्यों हुआ? फर्स्टली अपने को ये आंसर देना है. सिंपली वी कैन से दैट इज अ शुगर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द शुगर, यहां पर जो सेल्स का जो सॉल्यूशन बनेगा इट विल बी कंसंट्रेटेड, दैट विल बी कंसंट्रेटेड. यहां पर सिचुएशन कैसे रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कंडीशंस हैं, तो उसके कारण से जो वाटर है ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्या होगा यहां पर? ड्यू टू ऑस्मोसिस वाटर विल मूव इनसाइड. वाटर जो है वो इनसाइड मूव करेगा. इसी कारण से यहां पर वाटर गैदर्ड होता है. गॉट इट? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया. सेकंड है व्हाई पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट. उसको अपन बाद में बात करेंगे, पहले डी पे अपन आते हैं. एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हाफ आउट पोर्शन ऑफ द ए एंड डी. ए और डी के अंदर वाटर इन स्टोर क्यों नहीं हुआ? डी की पहले अपन बात कर लें. डी जो है इट इज मेड अप बाय द डेड सेल्स, क्योंकि बॉइल्ड है. बॉइल्ड होने के कारण से सेल्स कैसे होगी? डेड. एंड ड्यू टू डेड सेल्स नो ऑस्मोसिस. इसके अंदर कोई ऑस्मोसिस जो है वो प्रोसेस नहीं हुई. तो ऑस्मोसिस नहीं होगा तो वाटर इनटेक नहीं होगा. गॉट इट? हियर द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इन द सेल्स डज नॉट चेंज, क्योंकि यहां पर कुछ मटेरियल है ही नहीं. तो उस कंडीशन में ये किस सिचुएशन में रह गया? आइसोटोनिक सिचुएशन में, जिसके कारण से वाटर इनटेक नहीं हुआ. गॉट इट? यहां पर हमने कोई भी साल्ट, शुगर कुछ भी नहीं लिया हुआ, तो उस कंडीशन में देयर इज नो ऑस्मोसिस. यहां पर नो चेंज इन कंसंट्रेशन, नो चेंज इन कंसंट्रेशन. सो osmosis
डज नॉट टेक प्लेस, इसलिए ऑस्मोसिस यहां पर नहीं हुआ। गॉट इट? तो इसके अंदर तो ऑस्मोसिस ना होने से वाटर गैदर नहीं हुआ, जबकि इसमें डेड सेल्स हैं, इसलिए ऑस्मोसिस की प्रोसेस ही नहीं हुई। गॉट इट? नाउ अब आते हैं अपन सेकंड वाला कि व्हाई ए इज नेसेसरी। ए जो है वो नेसेसरी क्यों है? हम ए का कंपेयर करेंगे इनसे, तभी तो अपने को पता चलेगा कि वाटर गैदर हुआ तो क्यों हुआ। टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, to understand the scenario of the osmosis, we required the a potato half। हमें जो a का जो पोटेटो हाफ है, यानी कि a जो कप है, वो हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम इस सिनेरियो या ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें वाटर के मूवमेंट को अपन समझ सकें। Got it? Understand? So that is the question answer of this chapter. Clear? Now do all the question answer in your copy. Okay, and all of these only two questions, that is that first was the amoeba and second is that I already explained. Now that's your work to do in your copy in your own words. Okay, about the next chapter we will discuss in next class.